Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with AVS Engineering College. Today I have discussed iterative enhancement model. Basically what is iterative enhancement model? Basically in previous lectures I have discussed spiral models, waterfall models, prototype models and evolutionary model. All the software development life cycle I have discussed in previous lectures, and today I want to cover iterative enhancement model. Then what is that iterative enhancement life cycle model? Does not start with the full specification of requirement. मतलब कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स में जो भी हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, all the requirements not incorporated in the one phase. We have delivered the multiple iterations, multiple phases of the product, right. The iterative cycle basically not specification of the requirements, of full requirements. The development begins by specifying and implementing just part of the software, which is then reviewed in order to identify further requirements. Means what? The development begin by specifying the implementing just part of software. Suppose that we collect all the requirements from client or customer or stakeholders, but you divided the whole project in different modules, and each and every modules just like a version, right. How many version you launch or different delivery times, right. These called the iterations, and each and every iterations you got the feedback from your client or your stakeholders, and all the strength and weaknesses whatever you done in your first iteration. If any glitches or any weaknesses in your first iteration, whatever mentioned by your customer or stakeholders, all are overcome in next version, right. Fix it in next version. This type of SDLC model does not target to establish a complete specification plan. इस तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कोई भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्लान नहीं करते हैं. मल्टीपल आइट्रेशंस में उसको डिलीवर करते हैं, नेक्स्ट वर्जन में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, जो भी हमारी बच जाती हैं. द प्रोटोटाइप इज द फर्दर रिव्यूड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट टाइम में जितने भी हम हमारे फर्स्ट जो आइट्रेशन होगा एज ए प्रोटोटाइप या फिर वर्जन हम जो वर्किंग सॉफ्टवेयर हम जो डिलीवर करेंगे, आफ्टर दैट जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आएंगी क्लाइंट साइड से या कस्टमर से या स्टेक होल्डर्स से, राइट, उसको फर्दर नेक्स्ट वर्जन में हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. द प्रैक्टिस देन द टास्क आर इटरेटिव फ्रॉम द क्रिएट न्यू वर्जन फॉर द एप्लीकेशंस. मीन्स व्हाट? फर्दर नेक्स्ट वर्जन में हम जितनी न्यू एप्लीकेशंस हैं, न्यू फंक्शनैलिटीज़ हैं या न्यू चेंजेस हैं, वो नेक्स्ट वर्जन में हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, राइट. दीज आर द इटरेटिव मॉडल, इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल. दैट इज़ व्हाट. देखिए, रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर करी, मल्टीपल बिल्ड्स में आपने डिवाइड कर दिया, बिल्ड 1, बिल्ड 2 एंड सो ऑन, राइट. व्हाट इज दैट? सपोज यू स्टार्टिंग ऑन द बिल्ड 1, दैट इज वर्जन 1, दैट इज डिजाइन फॉर द फ्यू रिक्वायरमेंट्स. सपोज दैट मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स R1, R2 and R3. Only 3 requirements incorporated in the build 1 and R4, R5 and R6 and so on. That means what? Only design and development for the only 3 requirements R1, R2 and R3, right. After that, testing and implementation. Again go for the next requirements R4, R5 and R6, right. For these requirements, go for the designing and development and testing and implementation and deployment. Same for the
further requirements, and all are the called the version 1, 1.0, version 1.1, version 1.2 and so on. Maybe what are the naming convention of the versions, it depends on the कंपनी टू कंपनी, राइट. जैसे कि आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन्स देखे हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आप, तो उसके मल्टीपल वर्जन्स आ चुके हैं, राइट. आप एंड्रॉयड के मल्टीपल वर्जन्स आ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मल्टीपल वर्जन्स आ चुके हैं, मल्टीपल फंक्शनलिटीज ऐड ऑन होती रहती हैं नेक्स्ट वर्जन्स में. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके मल्टीपल वर्जन्स आ चुके हैं, राइट. एंड ईच एंड एवरी वर्जन एडेड न्यू थिंग्स, राइट. Maybe is a iterative model. Phase of iterative model is what? That is requirement phase. As I told you previously, what is the requirement phase? Gather the requirement from your client, your stakeholders and your customers and end user also. All are different thing, right? Stakeholders, any person directly or indirectly connected with your project, your product, software product or project. And end user, who is the uses that project. Suppose that SDFC want to develop our internet banking website and Android app and iOS app also, but these are the client for your project. But end user is what? Common man जो कि कस्टमर का सॉरी HDFC का कस्टमर है, जहाँ पे किसके अकाउंट है HDFC में. ऑल आर द एंड यूज़र, राइट. एंड यूज़र डिफरेंट है, कस्टमर डिफरेंट है, डेवलपमेंट इन डिफरेंट है. तो ऑल आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट, राइट. तो व्हेन यू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टेक होल्डर्स इन दिस रिक्वायरमेंट्स फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, द सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड एनालाइज्ड. आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे और एनालाइज करेंगे. आफ्टर दैट मेक ए डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड व्हाट? SRS. उसके पहले क्या बनता है फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पे? BRS. उसके बाद क्या बनता है? FRS. What is the full form that BRS is what? Business requirement specification. SRS is what? Software requirement specification. FRS is what? Functional requirement specification, right? फंक्शनल भी तो टाइप की मतलब रिक्वायरमेंट्स में जो SRS में क्या होंगे? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर योर प्रोजेक्ट, एंड requirements, non-functional requirement and functional requirements, many more type of requirements collected from your stakeholders by the help of multiple processes, interviewing process, group discussion, meetings, questionnaire rounds, surveys, etc., right. The collect all the requirements are planned accordingly for the developing the system. According to that, whatever requirement you collected and analyzes, after that you bifurcate all the requirements according to your plan, and after that develop these development phases. Designing phase is what? After the requirement, go for the designing phase. Designing phase is what? In the design phase, the software solution prepared to meet the necessity of the design. मतलब कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितने आप फर्स्ट वर्जन में लॉन्च करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं. Only those requirement for go for the build one, right? Go for the first version, and this system design may be new one or the existing of one previous build one. हो सकता है कि जो नए आप रिक्वायरमेंट पे वर्क करना चाहते हैं, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हो सकता है कि नए फंक्शनलिटीज़ हों, या हो सकता है जो एग्जिस्टिंग प्रीवियस बिल्ड वन था, सपोज दैट बिल्ड वन में ही चेंज करना चाहते हैं, बिल्ड वन में नए वर्जन में हो सकता है कुछ फंक्शनलिटी आप चेंज करना चाहते हो, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, राइट. ये सेंडिंग मैसेज में, इमेज कैप्चरिंग में फिल्टर लगाना चाहते हो आप इमेज के बाद, कैप्चर करने के बाद मे बी. तो व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन यू वांट एंड योर कस्टमर वांट्स, इट डिपेंड्स कि प्रीवियस जो फंक्शनलिटी थी उसमें कुछ इन्हांसमेंट चाहिए, कुछ न्यू ऐड करना है, कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है, या प्रोसेस इन्हांसमेंट करना है, या GUI अपडेट करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट. लुक एंड फील चेंज करना है, कलर चेंज करना है, डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन टू डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. या फिर कुछ नई फंक्शनलिटी ही ऐड करनी है. जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, पहले स्टेटस का ऑप्शन नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टेटस अपलोड कर सकते हैं आप, राइट. डबल टिक का ऑप्शन बाद में आया, ग्रीन वाला, पहले नहीं था. दैट इज़ अ न्यू फंक्शनलिटी, राइट. तो डिपेंड कि न्यू फंक्शनलिटी ऐड करनी है, प्रीवियस वाले को इन्हांस करना है,
ऑल आर द इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू वर्जन. आई थिंक अंडरस्टैंड डिजाइनिंग में क्या चेंज करेंगे हम. ओके, आफ्टर दैट go for the implementation and test. Implementation and test, in the implementation as well as a test case phase, the system is developed by the coding and building the user interface and modules, which is then incorporated and tested. Right. What do you mean by that? As you know, in development time, developer perform the unit testing. Suppose that you break so your project in multiple modules M1, M2 and M3, and M3 have a sub modules M 2.1, M 2.2 and M 2.3. इसको रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं. अब सपोज दैट आप फेसबुक FB, फेसबुक आप सबको पता है, सब लोग यूज करते हैं, तो फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं. FB के 3 मॉड्यूल्स हैं. लॉगिन दैट इज M1, अगेन दैट इज चैट, दैट इज फोटो एंड प्रोफाइल. राइट. अब चैट के सब मॉड्यूल्स हैं. कितने टाइप की चैट होती है? टेक्स्ट चैट, वॉइस चैट एंड वीडियो चैट. दीज आर सब मॉड्यूल्स ऑफ दैट मॉड्यूल ऑफ फेसबुक मॉड्यूल. राइट. फेसबुक, अब इसमें क्या है, ये सब मॉड्यूल्स हैं. अब कितनी फंक्शनैलिटीज आपको ऐड करके देनी है नेक्स्ट वर्जन में, इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर प्लान. राइट. तो अब जितने भी आप मॉड्यूल्स बनाएंगे उसमें टेस्टिंग भी होगी प्रॉपर. तो टेस्टिंग क्या प्रोसीजर है कि जो डेवलपर, जब कोडिंग स्टार्ट होती है, जो डेवलपर है वो क्या करता है, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग. राइट. तो आफ्टर द मॉड्यूल टेस्टिंग, जब अगर लॉगिन पेज कोई डेवलपर बना रहा है तो लॉगिन टेस्ट की हर फंक्शनलिटी को टेस्ट करेगा. आफ्टर दैट चैट मॉड्यूल पे जो वर्क कर रहा है डेवलपर, वो चैट मॉड्यूल को सारे टेस्ट करेगा. अगर मान लीजिए डिफरेंट कोई टेक्स्ट चैट पे कर रहा है, 3 डेवलपर्स और इन्वॉल्व है, मान लीजिए वो वॉइस चैट पे हैं, कोई वीडियो चैट पे हैं. ईच एंड एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मॉड्यूल, आवर मॉड्यूल. राइट. तो जो भी डेवलपर है वो उसकी यूनिट टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पर्टिकुलर डेवलपर की. आफ्टर दैट जब वो अपना कोड सबमिट करेगा तो इंटीग्रेशन, इंटरफेसेस जो आपस में हैं, लिंकिंग जो मॉड्यूल्स की है, आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे तो ही पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा ना. तो इंटरफेस की टेस्टिंग जो होगी वो उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो ऑल टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्मिंग इन दैट फेज. राइट. तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड होल सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म बाय दिस एंड बिल्ड वन रिलीज कर देंगे आप. आफ्टर दैट रिव्यू फेज आएगा. द रिव्यू फेज इज वेयर द सॉफ्टवेयर इज एस्टिमेटेड, चेक्ड एज पर करंट रिक्वायरमेंट्स. जो करंट रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग टेस्ट की जाएंगे, रिव्यू किया जाएगा. देन द फर्दर रिक्वायरमेंट्स आर रिव्यूड एंड डिस्कस्ड एंड द रिव्यूड द पर्पज ऑफ द अपडेटेड द नेक्स्ट आइट्रेशन. रिव्यू का पर्पस क्या है? आजकल एजाइल प्रोसेस में काम होता है तो वहाँ बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग. जो कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हो गई हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं एज ए टीम, एज ए कस्टमर फीडबैक, मैनी मोर वेज टू रिव्यू आवर प्रोडक्ट और आवर डिलीवरेबल्स. राइट. अगर हम अपने डिलीवरेबल्स को प्रॉपर रिव्यू करेंगे, कस्टमर के फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो नेक्स्ट वर्जन में वो सारी चीज़ें हम गलतियाँ नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट वर्जन में, या जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको नेक्स्ट वर्जन में हम डिलीवर कर पाएंगे. राइट. Then iterative model is used in the following purposes. What is that? The system requirements can be classified and understood. The system requirements can be classified and understood. Means what? All the requirements should be well defined and category wise bifurcated. Right. That means always classified and well understood, and primary necessities of the system
जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, कैन बी डिफाइंड एट द सेम टाइम some systems working can be improved with the development process. उसमें से कुछ systems, कुछ functionality हम develop करके first version में दे देंगे. If a new technology needs, अगर कोई नई technology introduce होती है, the prior understanding this model can be helpful for known that latest technology and increment of the update the model accordingly. अब previous version हो सकता है हमारा कि previous किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बिल्ड किया था हमने, ओल्ड वर्जन पे चल रहा था. अब हो सकता है कि मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे, वो प्रीवियस वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, प्रीवियस वर्जन ऑफ ब्राउज़र पे एक्सेस होते हैं. बट नया वर्जन जो आप लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट का, वो जो नए मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, राइट, नई टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है, हर ब्राउज़र के अपडेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपडेट होता रहता है, इंटरनेट स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग राइट इंक्रीजेज इन आवर फील्ड, इन IT इंडस्ट्री. अगर हम सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करें, IT इंडस्ट्री की बात करें, तो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी टाइम टाइम इंक्रीज हो रही है, चाहे वो हार्डवेयर की बात कर लें, चाहे सॉफ्टवेयर की बात कर लें, चाहे प्लेटफॉर्म की बात कर लें, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स, चाहे ब्राउज़र की बात कर लें जिस पर आप एक्सेस करते हो इंटरनेट एप्लीकेशंस, या ग्राफिक ड्राइवर्स, या मेनी मोर थिंग्स, राइट. स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है. तो क्या जो आपका प्रीवियस वर्जन है वो नए वर्जन पे कंपैटिबल है? अगर आपने कंपैटिबिलिटी इशू सॉल्व नहीं किया तो वो नए यूज़र आपसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़ विस्टा. जब विंडोज़ विस्टा लॉन्च हुई थी तो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर करंट टाइम में अवेलेबल थे वो इंस्टॉल नहीं, इवन पेन ड्राइव तक अपडेट करनी पड़ गई थी. तो नई पेन ड्राइव के ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ा जो विंडोज़ विस्टा से कंपैटिबल थी. इस वजह से विस्टा फेल हो गई, राइट. तो अगेन उनको चेंज करना पड़ा, माइक्रोसॉफ्ट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने पड़े. विद इन 6 मंथ उन्होंने अपने पूरे सिनेरियो को चेंज करना पड़ा, बिकॉज आपके मैक्सिमम यूजर्स उससे बाइकआउट हो रहे थे अपने आप, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते थे विस्टा पे. आप नेट पे पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, है ना. माइक्रोसॉफ्ट का एक मेजर फेलियर था कि विंडोज़ विस्टा उनकी फेल हो गई, राइट. क्यों फेल होगी? प्रॉपर उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग नहीं की गई थी शायद, या फिर जो भी जब उन्होंने लॉन्च करा तो मैक्सिमम पुराने वर्जन सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉल नहीं होते थे, क्योंकि मैक्सिमम यूज़र, आपको पता है कि मार्केट में आप लोग भी मैक्सिमम लोग विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जिसमें बोलते हैं वो यूज़ करते हैं. और मैक्सिमम यूज़र जब देखे कि उसमें इंस्टॉल नहीं, मैक्सिमम लोगों ने लाइनक्स इंस्टॉल कर लिया या मैक पे चले गए, राइट. तो ये मेजर चैलेंज था उस वक्त. उन्होंने इमीडिएटली नया वर्जन लॉन्च किया, है ना, बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी कंपैटिबिलिटी इशू आने लगे थे. मैक्सिमम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उस पर कंपैटिबल नहीं थे विस्टा के, राइट. अगेन उनको कंपैटिबिलिटी लॉन्च करनी पड़ी नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि प्रीवियस वर्जन से कंपैटिबल थे. तो ये मेजर चैलेंज था, आप देख लें इसको एक बार, राइट. तो इस वाले हमारे जो इटरेटिव मॉडल है, इन्हांसमेंट मॉडल है, नए वर्जन में नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कंपैटिबिलिटी इशू हमेशा चेक करके लॉन्च करते हैं, करना चाहिए एक्चुअली. दिस मॉडल इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन दैट देयर आर हाई रिस्क इन द सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गोल्स. इन दिस मॉडल किस लिए यूज़ होता है कि जो हमारी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल है कि ऑनलाइन शॉपिंग का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं या ऐप बना रहे हैं, मोबाइल ऐप बना रहे हैं आप. इन दैट केस ट्रांजेक्शन मॉड्यूल इज़ वेरी क्रिटिकल. मल्टीपल चैनल्स हैं ट्रांजेक्शन के लिए. आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट्स UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, मल्टीपल कूपन्स आते हैं, मल्टीपल वेज हैं ट्रांजेक्शन, राइट. लेकिन हर ट्रांजेक्शन में कस्टमर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाती है, जस्ट लाइक उनके यूज़र ID, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स. तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ सिक्योरिटी ग्लिच नहीं होना चाहिए, यहाँ इशूज़ नहीं आने चाहिए. इसलिए मैक्सिमम लोग उसको थर्ड पार्टी को दे देते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे इनकॉर्पोरेट करके अपने मॉड्यूल में, अपने वेबसाइट में उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट. जैसे कि रूपे है, वीज़ा हैं, या मेनी मोर, पेपॉल हैं. तो मेनी मोर क्या हैं? ये सारे लोग हैं जो ट्रांजेक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो जो क्रिटिकल आपके मॉड्यूल्स हैं उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, उनको प्रॉपर फोकस करके उनको जितने भी रिस्क हैं उसको आपको, जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं उसको ओवरकम करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है रिस्क को, राइट. जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो
एंड द गोल हमारे क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोजेक्ट डिलीवर होना चाहिए, टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, विद इन द कॉस्ट होनी चाहिए, राइट। तो वो सारे जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, राइट, वो सारे इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। अगेन सिचुएशन वेयर द रिसोर्स विद द रिक्वायर्ड स्किल सेट, आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उसकी स्किल सेट रिक्वायर्ड है, मतलब किसी को जावा टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, किसी को वेबसाइट डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, किसी को सर्वर साइड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, किसी को बैक एंड पे रिक्वायरमेंट है कोई, है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्किल सेट का रिसोर्स पर्सन आपके प्रोजेक्ट टीम में है, डेवलपमेंट टीम में है या नहीं, अगर है नहीं तो आपको हायर करना पड़ेगा, राइट। और उसकी कॉस्ट भी आपके बजट में आनी चाहिए, राइट। अगेन और नॉट एक्सेसिबल अगर नहीं है, देन द सिस्टम नीड्स टू बी डेवलप एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस and choosing the SDLC based on the situation of the project. अब according to the requirement, according to your project, हम क्या चूज़ करते हैं, आपको इनिशियल लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स की, जो आप रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि मुझे बनाना क्या एक्चुअली, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द मॉड्यूल्स, व्हाट आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट. On that basis you will decide कि which software development life cycle you chooses for the development, right. What are the advantages of the iterative enhancement model? Some working functionality can be developed quickly, बहुत जल्दी इसको डेवलप कर लेते हैं अर्ली इन द लाइफ साइकिल. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्जन आप कुछ रिक्वायरमेंट को आप इनकॉर्पोरेट कर डेवलप करके इंप्लीमेंट करके लॉन्च कर देते हैं. दैट इज द फर्स्ट आइट्रेशन, दैट इज फर्स्ट वर्जन ऑफ दैट प्रोजेक्ट. एंड रिजल्ट आल ऑब्टेन अर्ली एंड पीरियोडिकली. अब ऑब्वियसली जब मल्टीपल वर्जन जाएंगे तो पीरियोडिकली आएगा ना, फर्स्ट वर्जन, सेकेंड वर्जन, थर्ड वर्जन, राइट. तो मल्टीपल वर्जन्स अर्ली स्टेज में रिजल्ट्स क्या होता है कि जल्दी आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स, नॉट होल रिक्वायरमेंट्स. एंड टाइम टू टाइम पे नए नए वर्जन्स आते रहते हैं. एंड पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान्ड. इसके पैरेलल आप डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं. इससे एक बेनिफिट और है, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपको कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो आपको कम बजट में पता लग गया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको मेरा जो आइडिया वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कम लॉस में बच गए, राइट. अगर अदरवाइज अगर आपको पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट आइटेशन आप और मनी लगा के उसको डेवलप कराइए और प्रोजेक्ट को और आगे फॉर द एज अ क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव, नॉट फॉर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव, राइट. एंड प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड. और प्रोग्रेस आपकी टाइम मेजर हो सकती है, राइट. क्यों? क्योंकि वर्जन 1, वर्जन 2, बिल्ड 1, बिल्ड 2 जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो सारे क्या हैं, आपने जब वर्जन 1 लॉन्च किया, बिल्ड 1 फर्स्ट आइटरेशन के बाद, तो आपका कस्टमर के फीडबैक, एंड यूजर का फीडबैक आया, क्लाइंट का फीडबैक आया. अगर वो सक्सेसफुल जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो गो फॉर द नेक्स्ट वर्जन. वॉट एवर चैलेंजेस, वॉट आर टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड, वो नेक्स्ट वर्जन में आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, अकोमोडेट कर लेंगे, राइट. दैट इज़ द प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, हम टाइमली, और जो क्लाइंट है वो भी टाइमली एक्सेस चेक कर पाएगा कि प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो रहा नहीं रहा है, विद इन कॉस्ट हो रहा नहीं हो रहा है. फर्स्ट वर्जन हुआ, सेकंड वर्जन भी इस कॉस्ट में इस टाइम पे हो जाएगा डिलीवर. दैट इज़ अ वन प्रेडिक्शन फ्रॉम द कस्टमर, राइट. लेस कॉस्टली टू चेंज द स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स. अब इसमें जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने एक बार वर्जन लॉन्च किया, नेक्स्ट वर्जन में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती हैं, उसमें टाइम और कॉस्ट कम लगता है. और टाइम पीरियोडिकली है, तो टाइम चेंजेस होते रहते हैं और टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है. तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट. हाँ, सॉफ्टवेयर कभी किल नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, आउटडेटेड हो जाता है. अगर आप टाइम पे अपडेट भी करा रहे हैं, नई फंक्शनलिटी ऐड भी कर रहे हैं, तो होगा क्या कि टाइमली आपका सॉफ्टवेयर अपडेट भी रहेगा, नई टेक्नोलॉजी कंपैटिबल भी रहेगा, और नई फंक्शनलिटी ऐड भी होती रहेंगी, और मार्केट में एग्जिस्ट भी करेगा लॉन्ग टाइम तक, राइट. दीज आर द एडवांटेजेस. टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग द स्मॉल आइट्रेशन इज ईजी. अब नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आप कम बिल्ड कर रहे हो फर्स्ट आइट्रेशन में, फर्स्ट वर्जन में, तो अभी टेस्टिंग टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट. और डिबगिंग के टाइम पे जब आप रिक्वायरमेंट टेस्टिंग फिक्स करोगे तो डिबगिंग टाइम कम लेगा, तो ओवरऑल बजट भी कम हो जाएगा आपका, राइट. एंड रिस्क एंड आइडेंटिफाइड, रिस्क आर आइडेंटिफाइड, सारे रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे फर्स्ट वर्जन में, मैक्सिमम हो जाएंगे ना, सारे तो नहीं होंगे. रिजॉल्व ड्यूरिंग द आइट्रेशन.
और नेक्स्ट आइट्रेशन में आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे। जो फर्स्ट वर्जन में आइट्रेशन में रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं, एंड ईच आइट्रेशन इज ईजिली मैनेज्ड एज माइलस्टोन। मतलब नेक्स्ट वर्जन में जो आप प्रीवियस जो ग्लिचेस थे, जो बग्स थी, जो डिफेक्ट्स थे, या फिर जो रिस्क आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत हुई, वो आप नेक्स्ट वर्जन में ओवरकम कर पाओगे, राइट। तो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, नई फंक्शनैलिटी भी आप ऐड डाउन करा सकते हो नए इटरेशन में, राइट। और हर वर्जन आपका एज ए माइलस्टोन, प्रीवियस वर्जन में जो चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, स्टेबल हैं और अच्छे से लोग वर्क कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि नए इनोवेशन आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें आपकी प्रॉपरली रन कर रही होती हैं, राइट। ईजियर टू मैनेज रिस्क, हायर रिस्क पार्ट ऑफ द डन इन फर्स्ट वर्जन, डन इन फर्स्ट। मैं इसमें रिस्क को मैनेज करना ईजी है। फर्स्ट वर्जन में जो रिस्क थे आपने फर्स्ट टाइम में आपको चैलेंजेस आएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम पे जो आपका प्रॉपर वर्किंग सॉफ्टवेयर आप डिलीवर करते हैं वर्जन फर्स्ट, आफ्टर दैट रिस्क का क्वांटिटी कम हो सकती है और इजीली इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, राइट। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल या इंक्रीमेंटल मॉडल, एंड फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द इटरेटिव इंक्रीमेंट मॉडल। विथ एवरी इंक्रीमेंट ऑपरेशनल एंड प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, ऑलवेज ऑपरेशनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं हम। इश्यूज, चैलेंजेस एंड रिस्क आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईच इंक्रीमेंट एंड यूटिलाइज्ड अप्लाई टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। नेक्स्ट वर्जन में आप अप्लाई करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। रिस्क एनालिसिस इज बेटर, क्योंकि हर वर्जन में आपको टाइम मिल जाता है रिस्क एनालाइज करने, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, तो नेक्स्ट वर्जन में उसको आप रिमूव कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ये मॉडल जो है क्या करता है, हर आइट्रेशन में चेंजेस को सपोर्ट करता है, जो चेंजेस आप चाहें नेक्स्ट मॉडल में करा सकते हैं। एंड इनिशियल ऑपरेटिंग टाइम इज लेस, ऑब्वियस सी बात है, फ्यू रिक्वायरमेंट्स को लेके हम डेवलप करते हैं बिल्ड 1 या इटरेशन 1 या वर्जन 1, तो हमें लेस टाइम लगता है डेवलपमेंट करने के लिए, राइट, और ऑपरेटिंग टाइम भी कम लगता है। एंड बेटर सूटेड फॉर द लार्ज एंड माइल मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इंक्रीमेंट इन्हांसमेंट मॉडल ये क्या करती है, ये लार्ज और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में बहुत सूट करती है, क्योंकि आपने थोड़ा सा डेवलप करके चेक कर लिया, कुछ दिनों तक क्लाइंट को दे दिया आपने कुछ रिक्वायरमेंट बिल्ड करके, उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व हैं, वीकनेसेस हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो क्लाइंट और एंड यूज़र उसको बताएंगे। फिर नेक्स्ट वर्जन में आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वायरमेंट्स को और रिस्क को, और नेक्स्ट वर्जन में आप और अच्छा डेवलप करके देंगे। तो कम कॉस्ट में जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स थे उसमें अच्छा डिलीवरी कर पाएंगे आप, राइट, नेक्स्ट वर्जन में। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अर्ली, जल्दी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं आप, विथ फैसिलिटी द कस्टमर इवेल्युएशन एंड फीडबैक। ऑब्वियसली जल्दी आप फीडबैक पा जाएंगे कस्टमर्स का वर्जन 1 में, उसको नेक्स्ट वर्जन में आप इनकॉर्पोरेट भी कर पाएंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मोर रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड, इसमें रिसोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन टीम रखनी पड़ेगी आपको। जो फर्स्ट वर्जन में टीम काम कर चुकी है, नेक्स्ट वर्जन में वो रहेगी, तभी आप काम इजीली होगा। नया टीम हायर करेंगे तो अगेन पूरा प्रोजेक्ट समझाओ, उसे ट्रेन करिए आप टीम को, स्किल रिसोर्स आपको। तो इसमें क्या है, रिसोर्स आपका होना चाहिए। अगर रिसोर्स स्विच कर गया, नए रिसोर्स हायर करोगे, ट्रेनिंग टाइम जाएगा पूरा प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करने में, डिलीवर करने में, तो हो सकता है आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, राइट। ऑल द कॉस्ट ऑफ चेंजेस इज लेसर, अदरवाइज कॉस्ट लेसर, बट इट इज़ नॉट वेरी सुटेबल फॉर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं चेंज रिक्वायरमेंट, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज जाती है अगर आपका रिसोर्स चला गया है। मोर मैनेजमेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट बहुत अटेंशन रिक्वायर्ड है इसमें, क्योंकि बार बार कस्टमर का फीडबैक लीजिए और प्रीवियस टीम आपको रिटेन करके रखिए और नेक्स्ट वर्जन में उसको इनकॉर्पोरेट करके डिलीवर करिए। इसमें मैनेजमेंट कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ दैट मॉड्यूल। सिस्टम आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इशू मे बी अराइजेस बिकॉज नॉट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड इन द बिगनिंग फ्रॉम एंटायर लाइफ साइकिल, क्योंकि स्टार्टिंग में सारी रिक्वायरमेंट गैदर नहीं कर रहे हैं। तो अगेन चैलेंज क्या है कि पूरा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आप डिज़ाइन करते हैं जब पूरी रिक्वायरमेंट आ जाती है, लेकिन रिक्वायरमेंट जब चेंज होगी तो इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वर्जन में होता है पूरा आर्किटेक्चर चेंज करना पड़े तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, या आर्किटेक्चर में चेंज करने पे कोई ग्लिच आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत होती है आईटी जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं आप। तो अगर पूरी रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं आई है स्टार्टिंग में, हम कुछ रिक्वायरमेंट को लेकर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आएगी उसमें आर्किटेक्चर में चेंज करने पड़ सकते हैं, डेट इज़ कॉस्टली, और उसके वजह से बग्स डिफेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट।
डिफाइनिंग इंक्रीमेंट में बी रिक्वायर्ड, डिफाइनिंग और डेफिनेशन कंप्लीट सिस्टम। तो रिक्वायरमेंट हमें प्रॉपर डिफाइन करनी पड़ेगी इंक्रीमेंट्स में। अगले वाले में क्या करने वाले हैं, अगर हम उस स्टार्टिंग में ही आर्किटेक्चर बना के चलें तो बेटर है। हम ये मॉडलर अप्रोच अप्लाई करके कर सकते हैं, राइट, कोहेजनस कपलिंग पे फोकस करके। एंड नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर, मैनेजमेंट मैं आपको बताया कि मैनेज करना टफ है, राइट, तो इसमें मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज ज़्यादा रहेगी, है ना। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में नॉट बी नोन विच इज़ अ रिस्क, आपको एंड प्रोजेक्ट नहीं पता होता कई बार, तो वो एक अलग रिस्क है। जब आपको पता लगेगा मे बी मेजर चैलेंजेस कुछ और हों, राइट। हाई स्किल्ड रिसोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिस्क एनालिसिस, इसमें हाइयर एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए और रिस्क को एनालाइज कर पाए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए उस डोमेन का जिसमें आप प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, अगर रिसोर्स एक्सपीरियंस नहीं है तो बाद में जो चैलेंजेस आएंगे फर्स्ट आइटरेशन सेकंड आइटरेशन में, तो कॉस्ट और टाइम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसलिए आपका रिसोर्स बहुत स्किल्ड होने चाहिए जो कि प्रॉपरली मैनेज और एक्सेप्ट कर पाएँ और एनालाइज कर पाएँ रिस्क को, उसको मैनेज करके रिमूव भी कर पाएँ, जो भी रिस्क को प्रॉपर रिजॉल्व कर पाएँ, राइट। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क एंड एनालिसिस फेजेस, अब आपका जो भी प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट की वो हाईली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क, किस पे है, एनालाइजेस द जितने फेजेस हैं हर आइटरेशन में। पहले आपने रिक्वायरमेंट गैदर करी, फिर डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन करा, फिर टेस्टिंग करी, फिर डिप्लॉयमेंट करा, फिर आपने लॉन्च करा, राइट। तो ईच एंड एवरी फेजेज में जो रिस्क इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपर एनालाइज होनी चाहिए, रिजॉल्व होनी चाहिए। या बड़े प्रोजेक्ट्स में, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में ये इटरेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल आप अडॉप्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप चेंजेस करते हैं और हर आइट्रेशन में जो भी फीडबैक आया कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं। बट कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करा। तो नेक्स्ट फेज़ में आप ध्यान रखें कि आप कैसा प्रोजेक्ट है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टू बी वेरी क्लियर, crystal clear for your project requirement. After that you chosen the software development life cycle based on the advantages and disadvantages of that SDLC, right. I think cover all the points of iterative enhancement model, incremental model, right. Thank you.